Hey friends, in this video we are going to study about the life cycle of Cycas, and let's begin with the reproductive structures of male cone of Cycas. So here we know that the Cycas plants, they are strictly dioecious, which means that the male Cycas plant bears male cone while female Cycas plant bears Megasporophylls, or we can say female strobili or female cone. Over here, let's begin with the male plant. We can see in this diagram there is a male plant of Cycas. So here we can see there is a single prominent and a very large male cone which is present at the apex of the stem, and over here it is surrounded by a crown of foliage leaves. So this is the male cone of Cycas, and these are the foliage leaves. This male cone, it is formed by the compact structures of large amount of megasporophylls. So बहुत सारे बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो कॉम्पैक्ट करके जो है मेल कोन बनाते हैं और एक सिंगली लार्ज मेल कोन डेवलप होता है. सो वी नो दैट द साइकस प्लांट्स आर heterosporous. Heterosporous means that they produce two different kinds of spores, which is microspores in case of male and megaspores in case of female. Microspores are produced in the male cone while megaspores are produced inside the megasporophyll or female cones. Plant is dioecious. Dioecious का मतलब क्या है कि male plant bears male cone, female plant bears megasporophylls, right? So microsporophyll is the reproductive structure which is present in the male plant. माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट होके एक दूसरे के साथ फ्यूज होके या ओवल फॉर्म होके ये जो है एक दूसरे के साथ जुड़ के जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम मेल कोन बोल देते हैं. तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वो है माइक्रोस्पोरोफिल. वाइल इन केस ऑफ फीमेल इट्स मेगास्पोरोफिल्स, जो कि ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एक कोन टाइप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं. बट स्टिल हम उन्हें एकदम एग्जैक्टली फीमेल कोन नहीं बोल सकते, बट येस दे रिप्रेजेंट द फीमेल reproductive structure, so they are called as megasporophyll. So in female plant it's megasporophyll, in male plant it's microsporophyll. So this is the male plant of Cycas. This diagram represents the male plant of Cycas. So let's start with the male cone. तो ये जो फॉर्मेशन है मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स की, ये कब शुरू होती है, जब जो प्लांट है वो 10 साल का हो जाए या 10 ईयर्स से ऊपर का हो जाए. मतलब कि अगर साइकस प्लांट जो है वो 10 साल का है या 10 से ऊपर का है, तब उसके अंदर जो है मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल्स की डेवलपमेंट होती है, विच इज मेल कोन और फीमेल कोन, राइट. तब उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है. अगर मेल कोन की बात करते हैं तो जो मेल कोन है इट डेवलप्स सिंगली एट द अपेक्स ऑफ the apex of the stem of the male plant. तो यहाँ पे जो मेल प्लांट है इसके अपेक्स पे, मतलब सबसे ऊपर जो है एक सिंगली लार्ज डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम मेल कोन बोलेंगे. So which means that the male cone occupies the terminal position and the apex of the stem, it is utilized in the development of male cone, so its further growth is stopped. यानी कि अगर ये अपेक्स पे सबसे ऊपर वाले पार्ट पे जहाँ से जो है ग्रोथ होती है प्लांट की, वहीं पे जब है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल कोन जब बन जाएगा, तो इस मेल कोन की फॉर्मेशन होने के कारण जो है इसकी फर्दर ग्रोथ जो है स्टेम की वो रुक जाएगी, which means that the further growth of the stem is stopped, and later on there is a lateral bud formation occurs from the base of peduncle. तो एक lateral bud यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी from the base of peduncle. Now peduncle is a kind of stalk of flower or we can say fruit. यानी यहाँ पे जो flower जो reproductive structure है वो male cone है, तो यहाँ पे जो है peduncle is a stalk of the male cone. So there is a formation of a lateral bud from the base of peduncle which grows from the lateral position, and it grows straight, pushing this male cone to one side and showing its growth.
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो टर्मिनल पोजीशन है ये रुक जाती है और लेटरल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, विच मीन्स दैट द मेल प्लांट ऑफ साइकस इट शोज अ काइंड ऑफ ब्रांचिंग विच इज नोन एज सिम्पोडियल ब्रांचिंग और साइमोस ब्रांचिंग. So here this is the structure of the branching pattern which we can see in the male plant of Cycas. Here this is the main stem. तो स्टेम की अपेक्स पे जो है मेल कोन डेवलप हो गया था, जिसके कारण जो है फर्दर ग्रोथ रुक गई थी. तो बाद में क्या होता है कि एक लेटरल बड डेवलप करती है जो कि एक लेटरल ब्रांचिंग फॉर्म में आ जाती है, और इस लेटरल ब्रांचिंग में भी टर्मिनल पोजीशन पे अगेन जो है एक मेल कोन बन जाएगा. तो टर्मिनल पोजीशन पे मेल कोन बनने के कारण फर्दर क्या होगा, यहाँ से एक लेटरल ब्रांच निकलेगी, वो फर्दर ग्रो करेगी स्ट्रेट अवे और जो टर्मिनल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगी एक तरह से, फिर वहां पे भी एक टर्मिनल पोजीशन पे जो है उसके भी एक मेल कोन डेवलप हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की जो ब्रांचिंग है, जो कि मेन स्टेम जो है, जो मेन अपेक्स है, जो मेन ट्रंक था, वो जो है ग्रो नहीं कर पाता है, वो स्टॉप हो जाता है और फिर लेटरल ग्रोथ होती है. तो इस तरह की ब्रांचिंग को जो है सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहा जाता है. एंड दिस इज द लेटरल स्टेम. So this kind of branching, so male plant of Cycas shows sympodial branching, and the further growth of the plant occurs by the activity of this stem apex of the lateral branch, which grows straight and occupies the terminal position. So this grows straight, ये सीधी हो जाती है, ये मेल कोन एक साइड पे हो जाता है, तो जिस कारण से हमें ऐसा लगता है कि शायद यही मेन ट्रंक है, बट इनिशियली तो ये थी, तो मेन जो थी वो रुक गई है. तो दिस काइंड ऑफ ब्रांचिंग इज called as sympodial branching, which we observe in case of male plant of Cycas. However, this is absent in the female plant of Cycas. So this is the difference. नाउ अब हमने ये पढ़ लिया है कि जो है फॉलिएज लीव्स, जो क्राउन लाइक लीव्स हैं, उनके बीच में अपेक्स की पोजीशन पे जो है मेल कोन बनता है. अब ये मेल कोन कैसा होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. तो अगर एनलार्ज सेक्शन हमें देखना हो एक मेल कोन का, so here this is the diagram of the male cone of Cycas. These are the bracts. These are the scale leaves, right, which represents and this represents a kind of bracts. यहाँ पे जो है मेल कोन है जो कि स्टेम की अपेक्स पे लगा होता है, टर्मिनल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. एंड दिस मेल कोन इट फॉर्म्स बाय द कॉम्पैक्ट फ्यूजिफॉर्म और ओवल कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन ऑफ दीज माइक्रोस्पोरोफिल्स. जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल्स. सो दीज माइक्रोस्पोरोफिल्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज मेल कोन, एंड इट रिप्रेजेंट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट और reproductive organ of the male plant. अभी जो मेल कोन ऑफ साइकस है इसको डिफाइन क्या करेंगे, दैट द मेल कोन ऑफ साइकस इज शॉर्टली स्टॉक्ड, कि इसका स्टॉक जो है बहुत छोटा है क्योंकि अपेक्स के ऊपर ही उग जाता है. तो इट्स शॉर्टली स्टॉक्ड, वेरी लार्ज, कॉम्पैक्ट एंड फ्यूजिफॉर्म और ओवल इन शेप. This male cone of Cycas, they are considered as largest male cone in all the plant kingdom. तो पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में अगर हम किसी भी, कौन सा प्लांट ऐसे हैं, कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि सबसे ज्यादा उनके बड़े जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम साइकस का नाम लेंगे कि जो साइकस है, जिम्नोस्पर्म साइकस है, वो जो है उनके पास सबसे बड़े रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं एज मेल कोन, एज फीमेल कोन, या हम ओव्यूल की बात कर लें या माइक्रो ओव्यूल की बात कर लेते हैं, या हम इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर लेते हैं. तो सबसे ज्यादा बड़े जो हैं इन्हीं के होते हैं. दे आर द लार्जेस्ट कंसिडर्ड मेल कोन्स एंड द लेंथ ऑफ द मेल कोन मे रीच अप टू 20 to 60 सेंटीमीटर. However, in case of Cycas ursinellis, it may reach up to 80 सेंटीमीटर और मोर. तो 80 सेंटीमीटर तक की लेंथ हो सकती है मेल कोन की, या उससे भी ज्यादा हो सकती है. अब ये जो मेल कोन है, द मेल कोन कंसिस्ट ऑफ, नाउ हियर आई एम शोइंग यू, दिस इज द लेटरल सेक्शन ऑफ दिस मेल कोन. अगर मेल कोन को हम इस तरह से लेटरली काटेंगे तो एक हमें इस तरह से जो है लेटरल सेक्शन दिखेगा इसी मेल कोन का, विच इज हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स टुगेदर. So the male cone bears microsporophylls which is arranged around the
cone axis, or which is also known as, this is the central axis or the cone axis. So the male cone bears large amount of microsporophylls which are arranged around the cone axis or central axis, and they are arranged spirally. तो ऐसे spirally जो है central axis, suppose central axis है, central axis के आसपास spirally arranged जो है male cones microsporophylls present हैं. So the male cone bears microsporophyll which is arranged spirally around the central axis in acropetal succession. Now what is acropetal succession? एक्रोपिटल सक्सेशन में क्या होता है कि जो मेल कोन है इसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं. जो माइक्रोस्पोरोफिल्स बड़े हैं, लार्ज हैं, ओल्ड हैं, वो बेस की तरफ प्रेजेंट होंगे, और जो न्यू माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो अपेक्स की तरफ प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज द बेस ऑफ बेस ऑफ मेल कोन, दिस इज द बेस ऑफ मेल कोन, एंड दिस इज द अपेक्स ऑफ मेल कोन. सो दिस इज द अपेक्स एंड दिस इज द बेस ऑफ मेल कोन. सो बेस पे जो है बड़े माइक्रोस्पोरोफिल, जो ओल्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो बेस पे होंगे, यंग माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपेक्स. सो द मेल कोन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स which is arranged around cone axis spirally. So they are spirally arranged around the central axis of the male cone in acropetal succession, which means older microsporophills towards the base and younger microsporophills towards the apex. Right? This is done. And one thing that we need to remember is that microsporophills of the middle order, तो जो बीच में जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं यानी कि इतने रीजन तक के, सो द माइक्रोस्पोरोफिल्स विच इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑर्डर, दे आर द लॉन्गेस्ट एज कम्पेयर टू दोज विच इज प्रेजेंट एट द बेस एंड अपेक्स ऑफ द मेल कोन. तो जो माइक्रोस्पोरोफिल्स बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स बीच में प्रेजेंट हैं, दीज आर द माइक्रोस्पोरोफिल्स विच इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑर्डर ऑफ दिस मेल कोन. दे आर लार्जेस्ट एंड दे आर लॉन्गेस्ट एज कम्पेयर टू दोज विच इज प्रेजेंट एट द बेस और अपेक्स ऑफ द male cone. So microsporophyll which is present at the base and apex of the male cone, they are smaller in size and they are shorter as compared to those present in the middle. और जो मिडिल वाले माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, जबकि बेस के और अपेक्स के माइक्रोस्पोरोफिल्स स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं. सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल कोन. नाउ फर्दर, ये जो मेल कोन है ये माइक्रोस्पोरोफिल बियर करता है. अब माइक्रोस्पोरोफिल के पास क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल के पास, ये हम इसके लोअर सरफेस पे देख सकते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया. सो दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि माइक्रोस्पोरोफिल बियर करता है. मेल कॉन कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया and microsporangia bears microspores within them. Right, so these are the microsporophills which is present on the lower surface or abaxial surface. Lower surface को जो है abaxial surface कहते हैं, जो कि पीछे का नीचे का surface होता है. This is the abaxial surface of the microsporophil bearing microsporangia. So these are the microsporangia which is present at the lower surface of the microsporophills. Right. So this is the this I have already told you that they are shortly stalked. मेल कोन जो है shortly stalked हैं, compact हैं, fusiform या oval shape के होते हैं. Largest male cones जो हैं वर्ल्ड में किसी भी प्लांट के, वो किसके होते हैं? किंगडम जिम्नोस्पर्म्स में साइकस के होते हैं. ठीक है. अब मेल कोन क्या करता है? माइक्रोस्पोरोफिल बियर करता है अराउंड द सेंट्रल एक्सिस इन अ स्पाइरल अरेंजमेंट इन एक्रोपिटल सक्सेशन, एंड दीज माइक्रोस्पोरोफिल्स एट इट्स लोअर सरफेस बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दोज माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग द माइक्रोस्पोर्स और वी कैन से पोलन ग्रेन्स. ओके, नाउ आफ्टर दैट अगर हम माइक्रोस्पोरोफिल्स की बात करें, सो द माइक्रोस्पोरोफिल्स विच इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑर्डर आर फर्टाइल एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन द बेस और अपेक्स ऑफ द मेल कोन. तो बीच वाले जो है फर्टाइल होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स. एंड द यंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, अगर यंग माइक्रोस्पोरोफिल्स की बात करेंगे, सो दे आर वेरी सॉफ्ट एंड फ्लैशी. मतलब कि जो नए जो माइक्रोस्पोरोफिल्स बनते हैं वो बहुत यंग होते हैं, फ्लैशी होते हैं. हाउएवर मैच्योर माइक्रोस्पोरोफिल्स बिकम हार्ड एंड वुडी. तो मैच्योर होने के बाद बहुत हार्ड से हो जाते हैं, सख्त और ब्राउन, डार्क ब्राउन, बहुत वुडी से हो जाते हैं, एज यू कैन सी. तो here the young microsporophills are young and fleshy while old microsporophills are hard and woody. And if we see, each microsporophil is flattened wedge shaped structure, horizontally flattened. Each microsporophil is horizontally flattened. This is horizontally flattened microsporophil. Each microsporophil is horizontally flattened and wedge shaped. And
इफ वी डिस्टिंग्विश माइक्रोस्पोरोफिल, एक डिफ्रेंसिएशन करें एक माइक्रोस्पोरोफिल की, सो ईच माइक्रोस्पोरोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन्स विच वी कैन सी इन दिस डायग्राम ओवर हेयर. दिस रिप्रेजेंट्स अ सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल. ये एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल है जो कि हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है एक मेल कोन में सेंट्रल एक्सिस के अराउंड. ठीक है, तो इसका अगर हम एक सेक्शन देखें, इसको लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से, अगर इसको इस तरह से सीधा करके देखेंगे तो यहाँ पे here we can see this is the structure of a microsporophil. So each microsporophil is differentiated into 3 different regions. This is the basal, narrow basal region, which is very narrow, and this is a sterile part. This is not fertile part. Remember, this is not the fertile part. This is the basal region of the microsporophyll, which is attached to the central axis of the male cone. This is the central axis of the male cone. So this is the basal portion of the microsporophyll, which is narrow, थोड़ा सा पतला होता है. So this is the narrow region of the microsporophyll, basal, narrow, sterile, not fertile. It's the sterile region which is attached to the male cone of this male cone to the, from the central axis, right? So this is the basal narrow part of microsporophyll attached to the central axis of the male cone, and the next one is the middle fertile part. Remember, this is the middle fertile part. यहाँ से यहाँ तक का हम middle fertile part consist करते हैं. This is the middle fertile part of the microsporophyll, which bears microsporangia on either sides of its ridges. These are the ridges. So they are present on either sides of the ridges and bearing large amount of microsporangia. These are the microsporangia present in the group. ठीक है, so they bear large amount of microsporangia. This is the fertile middle flattened portion of microsporophyll, and the last one is the upcurved sterile part, terminal upcurved sterile part of microsporophyll, which is called as apophysis. So this is the terminal sterile part of microsporophyll, which is termed as apophysis, and this is the whole this is how we can differentiate a microsporophyll. So in this diagram again, a microsporophyll is differentiated into 3 regions, which is the narrow basal portion attached to the central axis of the male cone, the middle fertile flattened part bearing microsporangia, and the terminal upcurved sterile part called as apophysis. This is how we can differentiate. Now we need to know अबाउट दी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए माइक्रोस्पोरोफिल. अगर मैं माइक्रोस्पोरोफिल को इस तरह से काट दूं तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन मुझे कैसा दिखेगा. सो हियर इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए माइक्रोस्पोरोफिल. So this microsporophyll internally consists of parenchymatous ground tissue. So ये जो टिश्यू है, यहाँ जो टिश्यू है सारे के सारे, these are the parenchymatous ground tissues bearing a large number of mucilage ducts present scattered in them, and vascular bundles are present in row. तो वेस्क्यूलर बंडल रोज में प्रेजेंट है, पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, और म्यूसिलेजिनस डक्ट्स जो हैं वो स्कैटर्ड हैं इनसाइड द ग्राउंड टिश्यू, पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज ऑफ दिस माइक्रोस्पोरोफिल. सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन. एज वी नो कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो क्या कंसिस्ट करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन इट्स लोअर सरफेस ऑल्सो नोन एज द बेक्सियल सरफेस. सो हियर अगेन इफ वी कंसिडर दिस डायग्राम ओवर हियर, द माइक्रोस्पोरोफिल bears microsporangia. These are the microsporangia over here. So the microsporophills bear microsporangia on its lower abaxial surface and in the middle fertile portion of the microsporangia, and this middle order of this male cone bears the fertile microsporangia containing the microspores within them. So again, if we see over here the transverse section of this microsporophyll, we can see over here the transverse section of this microsporangia also. So these microsporangia, they are present in them over here on their lower abaxial surface. अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट. सो सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल. तो ये माइक्रोस्पोरोफिल में हम ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जहाँ पे हमने यहाँ पे सोराई लिखा है, तो यहाँ पे एक सिंगल ग्रुप को जो है हम सोरस लिखते हैं. अगर एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजिया? सो द माइक्रोस्पोरेंजिया फर्स्ट ऑफ ऑल दे डेवलप in the middle flattened fertile portion of microsporophyll. Microsporophyll in its middle flattened fertile portion consists of microsporangia on both the sides or on both the ridges of the microsporophyll, and these are attached on its lower surface. Microsporangia are present on the lower surface of these microsporophylls, and they are present in a group of 3 to 6. मतलब कि देखो
1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 या 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं. सो दीज माइक्रोस्पोरेंजिया विच इज प्रेजेंट ऑन द लोअर surface of this microsporophyll in its middle fertile portion, they are present in a group of 3 to 6 and each group, एक सिंगल ग्रुप, जैसे एक सिंगल ग्रुप को मैं क्या कहूंगी, सोरस कहूंगी. ईच सिंगल ग्रुप इज कॉल्ड एज सोरस. अगेन हियर वी कैन सी, अगर इसी चीज को हम एनलार्ज पोर्शन में देखें तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है 3 के ग्रुप में यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम सोरस कहेंगे. ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं साथ में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमें दिख रहे हैं, इनको हम कहेंगे सोरल हेयर्स. दी आर दी सोरल हेयर्स. Here we can see this is the line of dehiscence of the microsporangia. तो जैसे ही ये लाइन जो है डिहाइज्ड हो जाती है, टूट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो जो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इनके अंदर बनते हैं या जो माइक्रोस्पोर्स इनके अंदर बनते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, डिहाइज्ड हो जाते हैं, एंड दे आर ब्लोन अवे बाय द एयर करंट्स. So this is the microsporangia. These are the line of dehiscence and they are present in group which is called as sorus. Single each group is called as sorus and बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट है तो उन्होंने सोराई कहा है. बहुत मल्टीपल ग्रुप, जैसे यहाँ पे 2, 15 या 20 ग्रुप है तो उन्हें सोराई कहेंगे, और सिंगल ग्रुप को हम सोरस कहेंगे, जिसमें 3 से 6 या 6 से 8 तक के जो है माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं टुगेदर कंटेनिंग सोरल हेयर्स. सो अराइजिंग फ्रॉम दी, अगर यहाँ पे इस डायग्राम को कंसिडर करें, अराइजिंग फ्रॉम दी माइक्रोस्पोरोफिल देयर आर सर्टेन यूनिसेल्युलर और बाइसेल्ड सोरल हेयर्स. दे अराइज फ्रॉम दी माइक्रोस्पोरोफिल्स. एंड अगर माइक्रोस्पोरेंजिया की डेफिनेशन होगी, व्हाट इज द माइक्रोस्पोरेंजिया? सो द माइक्रोस्पोरेंजिया आर ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर विच बियर्स माइक्रोस्पोर्स विद इन देम. माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स विद इन देम. So microsporangia, this is the microsporangia, this is a sac like structure, थैले की तरह स्ट्रक्चर है, एक oval sac like structure which bears microspores within them, right? This is the microsporangia. So I hope you understood about the nail cone of Cycas, about the microsporophyll of the Cycas, about the microsporangia, and in the next video we are going to study about development of microsporangia. कि जो microsporangia है इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है इस माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर सरफेस के अंदर, राइट? मिडिल फर्टाइल लोअर सरफेस है, वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बनते हैं. ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे एक ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. तो ये डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड ऑफ कोर्स द माइक्रोस्पोर्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. थैंक यू.